ڈاکٹر بھائی کے ساتھ اور باقی جو ٹیم ہے ان کے ساتھ یو کے تقریباً کوئی ایسا بڑا شہر نہیں بچا ہے کہ جہاں پر ہم نے اپنا لنڈن سے لے کر، اور اگر آپ میں سے کچھ لوگ جن کو تھوڑا سا ایک یونائٹڈ کنگڈم کی جغرافی پتہ ہو تو ساؤتھ ہیمپٹن سے لے کر جو بالکل ایک آخری کونا ہے، اور ابرڈین جو اسکاٹ لینڈ کا ایک دوسرا کونا ہے، وہاں تک ہر گاؤں دیہات میں، ہر بڑی شہر میں، ٹاؤن کے اندر انڈس ہاسپٹل کا ایک چیپٹر اس طریقے کا موجود ہے کہ جو اس طریقے کے اینول ایونٹس کرتا ہے. اور الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ گزشتہ ان 5-7 دنوں کے اندر کوئی 7-8 چیپٹرز اس طریقے کے ہم نے اس جرمنی کے اندر بنا لیے ہیں. اور اس سب کا میں سمجھتا ہوں کہ صحرا جو ہے اس ڈیڈیکیٹڈ ٹیم جو یہاں پر برلن میں، فرینکفرٹ میں، میونخ کے اندر موجود ہے، اور جنہوں نے بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس کام کو آگے لے جانے کے لیے اپنی جس کو کہتے ہیں نا دامے اس کے تھے جب انہیں فیور آیا تھا، اور فیور کے دوران جب ہم ان کا چیک اپ کروا رہے تھے تو وہاں پہ جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے ہمیں ڈائگنوز کر کے بتایا کہ محمد کو لیکیمیا ڈائگنوز ہوا ہے، اور پھر انہوں نے ہمیں انڈس ہاسپٹل ٹرانسفر کر دیا. میں بالکل سیٹسفائی نہیں تھی کیونکہ میرا مائنڈ سیٹ تھا کہ فری ہے تو پتہ نہیں کیسا ٹریٹمنٹ ہوگا. لیکن جب نیکسٹ ڈے میں نے تھوڑے ہوش سنبھالے اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کو تو ٹریٹمنٹ دے ہی رہے تھے، ساتھ ساتھ مجھے بھی مینٹلی ریلیکسیشن دے رہے تھے. سارا اسٹاف بہت اپنا ذمہ داری سے کام کر رہا ہے. جب کیمو بھی آتا تھا تو وہ چیک کرتے تھے، ڈبل چیک کے MMR نمبر سے بچے کا کیمو میچ کر کے پھر ہی بچے کو کیمو دیا جاتا تھا. ہوئے کسی تحفے کے ذریعے سے انسانی زندگیوں کو بچایا گیا ہے. اچھا، پروگرام کا یہ جو مرحلہ ہے نا، یہ جو آخری مرحلہ ہے، اس مرحلے میں 2 اہم چیزیں، اور ان 2 اہم چیزوں میں سے جو برابر کی اہمیت کی حامل، جیسے کہ اقبال حیدر صاحب نے بھی بہت خوبصورت تعارف کرا دیا ہے نعمان اجاز صاحب کا. پلیز آپ اسٹیج پر تشریف لائے گا. بہت سے ایسے ایوارڈز ہیں جو حاصل کر چکے ہیں، اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ جو بھی اسٹیج. سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم. سب نے شعر سے شروع کیا، میں تو بیٹھا سوچ رہا تھا، میں نے تو شعر یاد ہی نہیں ہوتا میں کی طرح، اور پھر میں نے بڑا زور لگا کر ایک شعر یاد کیا، اور وہ یہ ہے کہ پنجابی کا ہے. شور پیپل انڈرسٹینڈ پنجابی، ایسا اگر اردو سمجھ آتی ہے تو پنجابی بھی آ ہی جائے گی تھوڑی تھوڑی. کہ ہائی میری قسمت، ہائی میرے لیکھے، بجا نہیں سمجھ نہ آئی میں ریا وجود کو دیکھے. تو بانی صاحب ایک خوش نصیب آدمی ہے جن کو اپنی ایگزسٹنس کی سمجھ میں آ گئی کہ وہ کس لیے آئے ہیں دنیا میں. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں معلوم کہ وہ دنیا میں کس لیے آئے، لیکن وہ اپنی ایگزسٹنگ باڈی کی سیٹسفیکشن میں لگے ہوتے ہیں. رولیکس پانا، اچھا کوٹ پانا، اچھے جوتے پانا، اچھی گڈی کی بیٹھنا، بڑا کار ہونا چاہیے، نرم بستر ہونا چاہیے. لیکن میں ہلا کیوں ہوں یہ نہیں پتا. So I think he is the only one among us who know کہ میں کیوں آیا ہوں دنیا میں. So میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں ان کی ٹیم کا حصہ ہوں. تھینک یو بھائی، میری اللہ بلیس یو. اچھا، پروگرام کو آگے بڑھا کے نعمان صاحب نے کیا کچھ دیکھا، کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا، کہاں سے آپ کو انسپریشن ملی؟ دیکھیے انڈس ایوری نوز اباؤٹ انڈس ہاسپٹل ان پاکستان، اور میرا ذاتی طور پر جب تک وہ آپ آنکھوں سے دیکھیں جیسے پرویز بھائی بتا رہے تھے، کہ جب آپ کو اتفاق ہو پاکستان جانے کا تو ضرور جائیے اور ضرور اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے. سو میں گیا، میں نے دیکھا، اور پھر ایک اندر سے آواز آتی ہے کہ جان تو پہلے کوئی چنگا کام کر جا. تو وہ میں کیا پتہ نہیں کنی لکھی ہے، یہ تو رب کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں جانتا. سو میں نے کہا کہ یار اگر جانے سے پہلے اگر میں اس ٹیم کا حصہ بن جاتا ہوں اینڈ آئی ٹرائی ٹو کنونس 1 or 2 people to be a part of us، تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی. وہ کہتے ہیں نا کہ جب تمہارے در پہ کوئی مانگنے کے لیے آئے تو مسلح ڈال لو اور رو سجدے میں جا کے کہ شکر الحمدللہ میرے کو بھی کوئی مانگنے واسطے آیا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ پاک نے آپ کو دینے والوں میں سے بنایا، تو آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو دینے والوں میں سے بنایا. تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. اور اگر انڈسٹری ہم دیکھیں تو اٹس اے ڈریم کم ٹرو آف بانی صاحب، اور خواب بانی صاحب کا حقیقت میں جو نظر آ رہا ہے وہ بھی بانی صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے. ہم مستفید ہو جائیں گے اس سے، اور آپ لوگ دعائیں سمیٹ لیں گے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی. آتی میرا اندر سے یہ آواز آئی کہ آئی شوڈ بی اے پارٹ آف اٹ، اینڈ آئی ایم گریٹفل کہ اس
काफिले का हिस्सा हूँ। अच्छा देखिए, इससे पहले कि हम जो है ना एक अपनी पहली फंड रेजिंग की आस इसमें वो ज़्यादा उससे पहले एक और बात जो है वो बहुत अहम है। क्या? और वो बहुत अहम बात ये कि ये बैठे हैं सारे के सारे एक्सपर्ट पाकिस्तानी, कोई 20 साल से, कोई 40 साल से, कोई 50 साल से, कोई 10 साल से, कोई 2 साल से, 5 साल से, मुख्तलिफ अपने वतन से दूर यहाँ पर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को भी देखते हैं, यहाँ अमेरिका में मुख्तलिफ जगहों पर। आप कंपैरिजन जो है मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान के साथ मोहब्बत और जो पाकिस्तान देखा वहाँ पर अमेरिका में, यहाँ क्या देखा उसको थोड़ा सा जो है वो मैंने बिकॉज जी सरकार एक प्रोग्राम करता हूँ, उसमें मैंने किसी दिन बोला कि मुहिब्बुल वतन वही है जिसको कहीं और जाने की ऑप्शन नहीं है। मुहिब्बुल वतन पाकिस्तान है के साथ, लेकिन यकीन मानिए मुहिब्बुल वतन ये है जो इतनी दूर बैठ के उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। सो अपने लिए बहुत सारी गालियाँ दे रहे हैं और यकीन मानिए उनके पाकिस्तान की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें इन लोगों का जिक्र नहीं होता है। अब आप अपना फाइनेंशियल हालात देख लें, रुपये की बात जब तक रेमिटेंस नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं बात बनेगी। और रौला ही ना पैसे सब कुछ सीखना, लेकिन वो कहते हैं सदका, वो मैं अक्सर कहता हूँ कि कहते हैं कि सदका 1000 बलाओं को टालता है, लेकिन पाकिस्तानी को जब तक बिला चिमड़ ना जाए वो सदका नहीं देता। अच्छा वो बनाए नहीं जो आप लोग साथ लाए हैं, वो तो बड़ी खूबसूरत बनाए, वो चुनरी लेनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ब्लेस यू जी, थैंक यू वेरी मच। जी बिस्मिल्लाह करें। अच्छा चलें जी, बिल्कुल बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा देखें, ये आपने जो प्रेजेंटेशन भी देखी, डॉक्टर बाजी साहब ने भी इस गुफ्तगू के अंदर अपनी बात कही है, खासतौर पर जहाँ प्राइमरी केयर जो पूरा सेटअप है ना वो एक्सटेंड हो रहा है और गांव देहातों के अंदर क्लिनिक्स बन रहे हैं। उसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा एक जो अहम प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है वो प्रोजेक्ट है एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा, अभी इस वक्त इंडस हॉस्पिटल का जो एग्जिस्टिंग पूरा नेटवर्क है ना, इसमें तकरीबन कोई 2000 बेडेड ऑपरेशन है पूरे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, जो कराची से शुरू होता है, बदीन और इस्लामकोट, इंटीरियर सिंध, और उसकी जो ऑपरेशनल बजट है इंडस हॉस्पिटल का वो $150 मिलियन है, $150 मिलियन, ठीक है। इस $150 मिलियन ये कहाँ से आता है, कैसे होता है, ये सब कुछ आपने ये सारी। अच्छा, इसके बाद $150 मिलियन से ज़्यादा कोई $200 मिलियन जो है वो जो नए जो बेड्स, नया जो ऑपरेशन इसके अंदर ऐड होने के लिए जा रहा है वो इसके अंदर ऐड हो रहा है। इसी मकसद से ये पूरी दुनिया के अंदर जो है अभी हम जा रहे हैं कि जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं उन सबको इंडस हॉस्पिटल का इसके जो पाकिस्तान का जो कौमी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं गुज़िश्ता 15 साल में, और आपको इसका पार्ट बनना है। लेकिन अल्लाह की तौफीक होती है, ठीक है। ये मैं तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ कि हो सकता है कि ये जो स्लाइड के ऊपर जो फिगर आए वो फिगर आपको महसूस हो कि बहुत बड़ी फिगर है, मगर उसके साथ साथ आपको इस बात का भी ख्याल करना है कि ये इन डोनेशंस के ज़रिए से पाकिस्तान को एक सेहतमंद पाकिस्तान जो है ना वो बनाना है, ठीक है। इन डोनेशंस के ज़रिए से, इन अतियात के ज़रिए से इंशाअल्लाह अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए एक सदका जारिया इस तरीके का बनाना है कि जिसका जो है वो हिस्सा डालना है। पहली जो आज की हमारी वो 10,000 यूरो की है, ठीक है। 10,000 यूरो से इंशाअल्लाह इस फंड रेजिंग का आज हमने आगाज़ करना है, और मैं चाहूँगा कि जो इसके अंदर हिस्सा डाले, 10,000 यूरो छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है यकीनन, ठीक है। मगर जब ये बात समझ में आ जाए कि इससे हज़ारों लोगों की जानों को बचाया जाएगा, कुरान मजीद ये कहता है कि एक इंसान की जान बचाना गोया पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है, ठीक है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि इससे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को बचाया जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि अच्छा देखिए, तरीके दोनों होते हैं ना, तो दोनों तरीके होते हैं। आप इस तरीके से भी देते हैं कि दूसरे हाथ को पता ना चले और किसी की इज्जत नफ्स उसकी जो है वो मजबूर ना हो, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है। और इस तरीके से भी होता है कि हमें मिलता है अपने वाक़यात के अंदर साहबा कराम के एक हॉस्पिटल पाकिस्तान के उसके अंदर चली जाए, यहाँ देना चाहते हैं आपको ये जो टैक्स की रिसीट है वो सब हो जाएगी। इंडस हॉस्पिटल यहाँ जर्मनी में रजिस्टर्ड है। तो मैं चाहूँ कि कोई पहला हाथ खड़ा हो और उससे जो है आज इसका जो है वो बिस्मिल्लाह किया जाए, ठीक है, बिस्मिल्लाह की जाए। तो कौन, कोई भाई, कोई बहन, कोई केबिल इकट्ठे होकर मिलजुल कर सोच कर, कोई फैमिली, कोई बिजनेस। जी हमारी बहन ने भरपूर तरीके से तालियां होनी चाहिए, उनका नाम बताइए। डॉक्टर ज़ैनब, आप हमेशा अगली सफर में नजर आती हैं। डॉक्टर
डॉक्टर ज़ैनब साहिबा के लिए भरपूर तरीके से तालीम होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ब्लेस यू। और हमारी पहले तो मैंने कर दिया, आपने आगे करनी है। हमारा डॉक्टर साहिबा तो हमारे पास हैं, और डॉक्टर साहिबा कर भी सकती हैं माशाल्लाह। और हमारा कोई भाई बहन जो हमारे साथ इस काम में खड़ा होना चाहे, जो मुझे कल बता रहा था कोई कि जर्मनी में जो मेडिकल की फैसिलिटीज वी आर वेरी प्रिविलेज्ड पीपल इन दिस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट। यहाँ के लोग जो यहाँ रहते हैं, ये वो मुझे कह रहा था कि यहाँ के अस्पताल आपका ऐसे सबके माँ बाप नहीं है ख्याल करते जिन्हें मरीज है ठीक टीचर जान रहा है ख्याल। इज इट ट्रू जी? इट इज ट्रू। एंड यू नो व्हाट, पाकिस्तान में जब घर का एक फर्द अस्पताल जाता है ना, तो पूरा निज़ाम बदल हो जाता है। और याद करिए, ज़रा सोचिए कि अगर वो फैमिली अफोर्ड ना करती हो तो वो फैमिली कितने क्राइसिस से गुजरती है। हम जैसे प्रिविलेज लोगों को बीइंग एन एक्टर अक्सर क्योंकि डेली बुनियादों पे 3 से 4 मैसेजेस किस तरह के आ रहे होते हैं, हेल्प चाहिए, मेरी बहन का ऑपरेशन है, मेरी बच्ची का ऑपरेशन है, या मेरे बच्चे का ऑपरेशन है, मेरे पास इतने पैसे नहीं। हम अपने कहीं जितनी कोशिश कर सकते हैं, लोगों को जो लोग हैं, लोग ये समझते हैं कि हम जो शो बिजनेस के लोग हैं शायद इस तरह के कामों में नहीं इन्वॉल्व होते, लेकिन आप यकीन मानिए शो बिजनेस के लोग सबसे ज़्यादा इस काम में इन्वॉल्व होते हैं। बिकॉज वी ऑलवेज ट्राई टू हेल्प पीपल आउट, बिकॉज लोगों की आपसे उम्मीदें होती हैं जैसे हमारी आपसे उम्मीदें। ये एक तो हमारी डॉक्टर साहिबा बहन होगी, ये हमारी जो बहन है, इनका जरा नाम बताना ताकि हम, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सोचने का काम ही ये मुझे आसान काम ये था डॉक्टर के लिए कि वो प्राइवेट अपनी प्रैक्टिस करता, एक ओपन हार्ट सर्जरी करता पाकिस्तान में उस जमाने में, आज से 20 साल पहले 25 साल पहले एक ओपन हार्ट सर्जरी करता। तो मिसिस रजा इमान साहिबा और मिसिस उमैरा अब्बास, मुझे किसने पूछा बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन, लेकिन देयर आर टू माशाल्लाह। to see you and to also see what you are doing. तो मैं ये बताना चाहूँगी कि PWA का आपने कहा, तो उसने हमें बहुत काम किया है उस ज़माने में, और मैंने बहुत सोचा था जब PWA में I am a blood donation expert, I am a transfusion medicine specialist. So उस ज़माने में PWA वाहिद ब्लड बैंक था हमारे पास जो हमें हेल्प करता था पेशेंट्स के लिए, और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये देख के कि वाली साहब ने ये चीज़ें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दी। और मैं यहाँ पर बायोटेक में हूँ, आई एम द हेड ऑफ द कोविड वैक्सीन एट द मोमेंट, और आई एम वेरी प्रिविलेज्ड टू मीट यू, और मेरी तरफ से बहुत दुआएं मिलती हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, 3 हो गए, तो ये 3 तो हमारी बहनें हो गई ना, खवातीन। 2 और चाहिए जी हमें। ठीक है, ये मर्दों की तरफ से जो है कुछ अनाउंस होना चाहिए ना, तो ये 10,000 यूरो की मजीद कोई आस, ठीक है, पांचवा कौन, कोई भाई बहन, कोई 10,000 यूरो। मुश्किल है, ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, लोग ये कहते हैं किस तरीके से ये आप खड़े होकर को मानते रहते हैं, मतलब थकते नहीं थकते भाई। अगर ये देखें, मतलब हम लोग जो है ना, वो तो इसी मकसद के लिए आए हैं, और वो इस मकसद को इस जगह पर पहुंचने से पहले कई मरतबा मेरा अपना ज़ाती तौर पर इंडस हॉस्पिटल जाने का इत्तेफाक हुआ है। इंडस हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए वो जो मरीज होते हैं ना, जिनके पाँव में चप्पलें तक नहीं होती और अंदरूनी सेल से वो आते हैं, कोई रक्षा में, कोई सुजुकी के ऊपर, कोई किस तरीके से वहाँ तक पहुँचते हैं, उनकी बस एक उम्मीद होती है, उनको उर्दू ज़बान तक नहीं आती है। नुमान साहब, कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो जनूबी पंजाब से आते हैं, नहीं खान साहबाबाद वगैरह से, उनको उर्दू भी नहीं आती है। उनको सिर्फ ये बात पता होती है कि उनके बच्चे की कैंसर की ट्रीटमेंट अगर कहीं हो सकती है पाकिस्तान में, तो सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे जी। मेरी आप सबसे दरखास्त है कि थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर दीजिए, हम एक बहुत अहम काम कर रहे हैं और इसमें हमें कुछ फोकस की जरूरत है। और माशाअल्लाह भरपूर तरीके से नाम वो अपना नाम बताएं। जनाब खलीलुर रहमान साहब, बहुत सारे जाने खलील भाई के लिए जी, खलील भाई चार हो गए हैं अभी।
ठीक है, पांचवा कोई नाम, कोई पांच हो गए? अच्छा, पांच हो गए। चलिए जी, कोई छठा, कोई इंडस हॉस्पिटल जो यहाँ पर आया, इसके साथ कितना ताउन किया? अल्लाह के नामालूम बंदे ने जो 10,000 दिया, उसके बाद खलीलुर रहमान साहब ने भी 10,000। अच्छा जी, चलिए ये तो 5 हो गए। मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चले जाते हैं और उसको देखते हैं कि हमारे एक और बहन भाई जो है वो उसके अंदर अपना अपना हिस्सा जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये एक्सपेंशन जी 5,000 यूरो है। एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सपेंशन के अंदर इस्तेमाल होगी। पहली डोनेशन 5,000 की आ गई है। मेरी बड़ी अच्छा, वो हमारे वो भाई को खौफनाक और डरा देने ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम सुनानी शुरू करेंगे तो आप सारी जेबें यहीं झाड़ के जाएंगे। ऐसी भी चीज़ें हैं, लेकिन वो क्या है कि मन से, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि डरा के किसी को उससे पैसे लेने का कोई फ़ायदा नहीं, जो अपने मन से देता है, अपने दिल से देता है, वो ज़्यादा उसकी कबूलियत होती है। बिल्कुल ठीक है। खालिद हुसैन साहब ने ईयरली पूरे साल भर के ऊपर उसको लगा दिया। बहुत अच्छी खालिद साहब ने 5,000 का ऐलान किया। माशाल्लाह। दूसरा इसके हवाले से साल भर के ऊपर आप लगा सकते हैं। कोई वजह होती है। आज हम सब जो यहाँ पर मौजूद हैं, हमने कितने प्लान्स कैंसिल, अल्लाह मेरी बख्शिश फरमाए, मेरे हाथों किसी का भला कराए, तो आज ये वही दुआ कबूल हो रही है। भैया उन्होंने पूछा अपने साथी से कि ये बस्ती किसकी है, तो उन्होंने कहा कि मौला ये आपके दुश्मन हैं। तो उन्होंने दुआ की कि परवरदिगार इन्हें यही आबाद कर और नेकी का रास्ता दिखा। दूसरी बस्ती में गए तो कहा ये दीन के दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है। कहा परवरदिगार नहीं, जो दुश्मन है उन्हें उसी जगह है। दूसरे मोहब्बत करने वाले थे, चाहने वाले थे, तो उन्होंने दुआ की कि परवरदिगार इन्हें बिखेर दे। आप जो यहाँ जर्मनी में आए हैं, आप अपनी रोटी या रोजी के लिए नहीं आए, आपको दुनिया भर में बिखेर दिया गया है कि आप जहाँ जाएं मस्जिदें बनाएं, नेक काम करें, हॉस्पिटल बनाएं। इसमें अल्लाह ताला का एक काम है जो आप यहाँ पहुँचे। और आपकी रोजी के अंदर, रोटी के अंदर, पैसों के अंदर किसी न किसी मुस्तहिक का हिस्सा है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और 15 चाहिए हमें। अच्छा, अब ये क्या है कि कोई डॉक्टर साहब ने जो फिगर्स दिए हैं, कोई 100,000 से ज़्यादा वो माएँ हैं और वो बच्चे हैं जिनकी डिलीवरी सेफ बर्थ 100,000 से ज़्यादा है, जिनकी जो सेफ बर्थ है वो इंडस हॉस्पिटल इस नेटवर्क के अंदर हुई है। ठीक है, पाकिस्तान मैटरनल मोर्टालिटी के अंदर, इनफैक्ट मोर्टालिटी के अंदर जो है वो टॉप के ऊपर है। तो एक 1,500 पाउंड, 1,500 यूरो के इस डोनेशन से इंशाल्लाह आप 10 माओ और 10 बच्चों की जिंदगी बचा लेंगे। हमारे पहले भाई ने वहाँ से अपना हिस्सा डाला है जी, पढ़ना चाहिए, लेकिन मसलन यहाँ से कोई 15 लोग हमारे हो जाने चाहिए। वो हमारी बहन है ये, क्योंकि उन्होंने 2 हो गई ये। आपने जरा नाम भी बताते चलेगा। वो भाई है, वो पीछे बिल्कुल पीछे बैठे हुए हैं, बहुत खूबसूरत हमारे भाई माशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी खूबसूरती में चार माशाल्लाह भरपूर भाई होनी चाहिए जी। वेरी गुड। आपने मेरा नाम भी अल्लाह बता दिया है, साथ साथ तो अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। जैसे जो है वो इस्तेमाल किया और उसे ये अल्लाह की तौफीक है। अल्लाह पाक को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जी, इसको ये अल्लाह की तौफीक है। बस पकड़ लीजिए। ठीक है कि आप रोज़न को जुबैर एडवोकेट साहब बहुत सोशल हैं, बहुत एक्टिव हैं। 1500 लोगों की तरफ से ये हमारा भी कुछ थोड़ा बहुत देखिए जी, अल्लाह ने कबूल कर लिया है। आपका यहाँ पर आना अल्लाह की कबूलियत की जमानत है। ठीक है, और हमारे कोई भाई कोई बहन जी, कोई अब कोई ये जो खड़े होकर हम इतनी देर बातचीत कर रहे हैं कि इसलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि ये ज़रूरत है। और खुदा की कसम पाकिस्तान अगर बचा हुआ ना तो ऐसे लोगों की वजह से बचा हुआ, वरना आपको पता है कि क्या होता है वहाँ पर। आप जाके देखिए वहाँ के अस्पतालों का हाल, मैंने तो देखा है इंडस हॉस्पिटल में वकील और सफीर और सबका एक तरह से इलाज होता है। इट इज सो नीट एंड क्लीन। माशाल्लाह, भरपूर तालियां होनी चाहिए। नहीं, हमें 15 का टारगेट भाई पूरा करना है। अच्छा देखिए, अपने माशाल्लाह बहुत शुक्रिया।
के डॉक्टर बारिक साहब ने हमारा एक्सेप्ट किया, छोटा सा डोनेशन। मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ RDD एडमिट्स ग्रुप, जो इनका काफ़ी बड़ा लेडीज ग्रुप है। हम लोगों ने काफ़ी सालों में 2016 से हम लोगों ने ग्रुप स्टार्ट किया था, और इसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे और भी फंड्स जमा किए थे, जिसमें हम लोगों ने ठरगदीन में, लाहौर में और छोटे छोटे गाँव में हम लोगों ने वाटर वेल्स बनवाए हैं, और स्कूल्स को, ऑर्फनेज स्कूल्स को हम लोग सपोर्ट दे रहे हैं। काफ़ी हम लोगों के प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। तो लास्ट 6 सालों में आई गेस 2 करोड़ रुपए हम लोगों के जमा हो चुके थे, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह और भी हमें हिम्मत अता करे कि हम लोग इंडस हॉस्पिटल का भी सपोर्ट दे सकें। और मैं क्योंकि डॉक्टर बारिक साहब को काफ़ी अच्छी तरीके से जानती हूँ लेक्चर्स के ज़रिए, तो मैं ये भी बताना चाहती थी कि मेरी खाला जो है उनके शौहर अभी हयात थे, लेकिन वो हमेशा ये कोट करते थे कि इंडस हॉस्पिटल ये वाहिद हॉस्पिटल है जो पाकिस्तान में जिसका फ्यूचर है, और इस हॉस्पिटल का काम कभी ना छोड़ना। तो वो ये आखिरी बात उनकी मतलब हमेशा ध्यान में रहेगी कि वो हॉस्पिटल का मतलब वो कहती थी और वो हॉस्पिटल पाकिस्तान का नहीं हो सकता जिसका फ्यूचर है, तो अपनी नौकरी कभी मत छोड़ना। ये मतलब बहुत बड़ी बात है कि वो खाला हमेशा कोट करती है, उन्होंने कहा था ये बात जरूर बताना, ये बहुत हम लोग के इमोशनल चीज़ है। हमारा छोटा सा ग्रुप है जी पाकिस्तानी डॉक्टर्स इन जर्मनी, जो कि सारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स को यहाँ ऑल ओवर जर्मनी कनेक्ट करता है। और डॉक्टर बारी साहब और उनकी टीम के साथ 2 दिन पहले, जिसमें हमने उनके साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की, और हमने उनको अपनी सपोर्ट की और अपनी इस बात की यकीन दिलानी की कि हम उनको हर तरह के प्रोजेक्ट में सपोर्ट करेंगे। उन्होंने हमें दावत दी है कि हम पाकिस्तान आके विजिट भी करें, जो कि हम इंशाल्लाह करेंगे, और जिस किस्म की भी सपोर्ट वो चाहते हैं वो हम ज़रूर करना चाहेंगे। मेरी मुख्तलिफ डॉक्टर से भी इस बारे में बात हुई है, और वो सब बहुत इंथुजियास्टिक है, क्योंकि हम यहाँ पे जॉब्स तो करते ही हैं, लेकिन हमें खिदमत खल्क़ का मौका बहुत कम मिलता है। इसलिए जब भी हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिले या ऐसा मौका मिले, हम ज़रूर उसमें अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। और मैं इस वक्त यहाँ से डॉक्टर्स की तरफ से इस कार्य में हमारी तरफ से जो कुछ भी हो सके उसमें आपके साथ ताउन के लिए यकीन दहानी कराने के लिए हाँ। His cost of book always to English hospital. 4 5 6 7 हो गए। 7 हाथ खड़े रखें अपने, प्लीज हाथ खड़े रखें। मिसेस आसिम हो गई हैं जी, मैं मिसेस आसिम हूँ। मेरी पूरी फैमिली यहाँ बैठी हुई है, हमारे टेबल पे, और सबकी तरफ से नहीं, अच्छा मैं अकेली आई हूँ, इनके पास अलग है। अच्छा ये होगी अपनी तरफ से, बाकी साथ खवातीन की तरफ से वाला होगा, ठीक है। शिराज गुलामी साहब के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। आसिफ हबीबुर रहमान साहब के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। अच्छा तालियां लगाते बस ये आखिरी बिल्कुल फाइनल एहसान इलाही साहब है जी, एहसान इलाही साहब माशाल्लाह जी। तसव्वुर हुसैन साहब के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। 5000 रुपये देने के लिए। 5 के लिए हाल था। अच्छा जी, और कौन है? वो हमारी इब्राहिम भाई, शाहीन साहिबा की तरफ से भी 500 रुपये। इब्राहिम भाई उसको मिल जाएगी। कोई अगर हाथ खड़ा कर देना तो आप अगर खुदा नहीं हो तो 500 यूरो लग जाएंगे इसके लिए। मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, बाकी कोई अपना दुपट्टा सही नहीं करे, कोई अपना बात। आमिर साहब ने 500, शिराज गिलानी साहब ने 500, शिराज गिलानी साहब ने, अली हमीद साहब ने 500 डोनेट करना चाहे हाँ नहीं माइंड पे लग झाड़ को भी। अच्छा जी 10 हो गए, 10 हो गए, ये 10 हो गए जी, 10 हो गए। हमारा टारगेट क्या था इब्राहिम भाई? अब टारगेट ये आखिरी एक बड़ी मतलब वो उम्मीद है, तो कोई पता नहीं, कोई एंड में टोटल हम रकम बताएं तो कोई मैच करने वाला खड़ा हो जाएगा, सामान हो जाएगा। अल्लाह पाक का करम एक है उनकी, मैंने आपको शर्ट दिखा दिया बाद में। जी जी उनसे इंशाल्लाह जो 8 साल देते रहे वो पेमेंट कहना कहा है बस वो लास्ट फाइनल लास्ट के 250 यूरो जो है वो
या कुछ भी हो सकते हैं महीने। आप 2 घंटे से पाँव कह रहे थे, मैंने जवाब दो मेरे मुंह से स्लिप ऑफ टंग अगर हो गई है। Please do not be there and relations of this. इसको इस संदेश नहीं, एक मिनट अभी नहीं जाने मुझे बात को देख करेंगे नहीं हो रहा है, इसके भरपूर तरीके से कार्य होनी चाहिए। अच्छा देखिए, अच्छा ये अभी मैंने तो ये कहा कि ये रनिंग टोटल कंक्लूड नहीं हुआ है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से यकीन है कि यहाँ कोई ना कोई भाई कोई बहन ऐसा जरूर बैठा होगा जो ये कहेगा कि इसको जो है वो 100,000 तक जो वो लेके जाने ताकि वो नंबर जो है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो ये 250 और आ गए और इसी तरफ से 250 और आ गए, तो ये नंबर इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। कोई और भाई बहन इस तरीके का होगा कि जो इसको जो है 100,000 तक कंप्लीट कर लेगा ताकि आज फ्रैंकफर्ट की हिस्ट्री के अंदर एक नई रकम जो है वो एक नई तारीख जो है वो रकम दी जाए इंशाल्लाह। भरपूर तारीख आप सब कहिए जी। आप में से वो लोग जो अभी नहीं दे पाए और वो सोच रहे हैं कि घर जाके मशवरा करके देंगे, तो ऑनलाइन भी आप हमारी वेबसाइट पर जाके आप डोनेट कर सकते हैं। अच्छा नवाज साहब, आप मुझे ये बताइए कि फरीदाबाद जो आपका ड्रामा था, हाँ, जिसमें आपने अच्छा ये फंड रेजिंग हो गया, कुछ बातचीत जो है ना कुछ बच्चा वैसे थोड़ी सी करना उसके बाद खाने की धन्यवाद। ये फरीदाबाद में आपका जो रोल था वो इतना लिमिटेड, इतना मुख्तसर था, लोग पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, जितने उनके पास पैसे थे मैंने उतने का काम किया। पूछ रहा हूँ तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ हमारे के साथ। जी प्लीज, अगर आप मुझसे एक सवाल ये कि जो मेरी कोई कजन मुझसे पूछना चाहे कि अगर कोई खातून होगी साथ तो मैं कहता कि हम दोनों के साथ बुशरा पर मैं, आप यकीन करें मैंने और बुशरा अपने नॉर्थ अमेरिका में we went to 12 different cities and people paid so much just only for the photographs and everything went to invest. हमारे साथ जो भी तस्वीर खिंचवाता है कुछ न कुछ देना पड़ता, मुफ्त नहीं है। अब हमने सोच लिया एक तस्वीर तो फिर मैं आपके साथ जरूर खिंचवाऊंगी। मेरी एक कजन ने मेरे साथ तस्वीर खिंचवाने की हमने भर ली है। थैंक यू। जिस हालत मेरा I have a question. जी यस, I'm a social scientist here. तो मुझे आपसे ये मासूमियत छुपी हो और आपकी आंखें बहुत बोलती हैं, आप आंखों से कैसे बात करते हैं? हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि इस बात के ऊपर बहुत सारी मीम्स बन गई, मीम्स बनी है पिछले दिनों। मैंने कह दिया कि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे जब रिस्क कमाने के लिए निकलो घर से तो बावजू निकलो। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 22 साल से बावजू काम करता हूँ। तो ये जो भी होता है उसमें सच मानिए मेरा कोई कमाल नहीं होता, ये अल्लाह पाक के फरिश्ते ही कुछ करवा जाते हैं। अरे अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करती हैं और अल्लाह पाक ने बाकी की हैं बेनतहा आसानी। और मैं अपने लाइसेंस को यही कहता हूँ, फिर वो मीम बन गई और अजीब से लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ये क्या काम है, ना महरम औरतों के नाम बसू। भाई वो नाम महरम लेकिन मैं तो उन्होंने ताल्लुक नहीं कर दिया, छेड़ते नहीं दिया ना, मैं कि अपना काम ईमानदारी में कर रहे हैं। तो आप एक तो हम ठेकेदार बन जाते हैं, चौधरी बन जाते हैं हर चीज़ की, तो कल सिर्फ अल्लाह आपको अजर देता है। जी मेरी कदर, हाँ तो मैंने वो अभी झाड़ पड़ी थोड़ी देर पहले दूसरी बात जी मैंने कजन माशाल्लाह। और मैं मांझा साहब से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास वक्त है तो आप मेरी तरफ आए और मैं आपको फ्री सर्विसेज दूँगी जिसमें हाइड्रा फेशियल और ऑपरेटिव हम जरूर रुकते हैं लेकिन अभी अच्छा थोड़ा सा मुख्तसर क्वेश्चन कर लें ताकि मेरे को खाना बिल्कुल कि आपने वो जो सिनेमा में एक्टिंग की थी उसके लिए आपने जो एक्सेंट था वो पठाना वाला एक्सेंट सीखा था आपने? नहीं, एक्टिंग सारा ऑब्जर्वेशन का काम है। जब भी हम कहीं बैठते हैं बीइंग एन एक्टर तो वो और लोग आपस में जब बातें कर रहे होते हैं तो हम सुन रहे होते हैं, तो फिर हम उधर से ही सुनकर मेरा सही बात हो गई कि मीडिया वो रोल नहीं प्ले कर रहा जो उसको करना चाहिए सोसाइटी की नॉर्म्स को। हकीकी जिंदगी में भी बनोज करीम वाला टच है आपकी लाइफ में? थोड़ा सा तालियां भी वो भाई
क्या मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, मैंने सिर्फ आपसे बात करनी चाहती हूँ। कैसे हैं आप? मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं देखना चाहती हूँ, मैं आपसे सब बात मैं करना ठीक चाहती हूँ। बहुत हैंडसम। अगर आपके पास टाइम हो तो आप हमारे घर अरे अल्लाह को मिलकर इंशाल्लाह ये करते हैं। हाँ पंजाबी है। हाँ मैं को मिला तो मैंने ना कि नहीं आपने मेरी बहना का रात को किसके साथ लाए तो परेशान में झाड़ देते थे। तो मैं जी जरूर इंशाल्लाह अगली दफा आए तो जरूर हाजिर देंगे, ये वादा है मेरी बहना। अच्छा स्टोरी है, राइट? हर एक स्टोरी यूनिक है आज, लेकिन इस महफिल में जिस स्टोरी पे फोकस था वो मोहतरम अब्दुल बारी साहब की स्टोरी, और ये स्टोरी है हार्ड वर्क, ट्रू इंटेंशन, कमिटमेंट एंड परसिस्टेंस। आई वुड से कि फ्रैंकफर्ट कम्युनिटी की तरफ से एक दफा भरपूर तरीके से अब्दुल बारी साहब की मिसाल मेरा ये है टीम को एक साथ तरतीब देख के, लोगों को देख के, कंफर्ट लेवल को देख के अल्लाह से कोशिश की है कि अल्लाह के रास्ते में कहीं मैं भी कुछ थोड़ा सा हिस्सा डाल लूँ। मैं बहुत दिनों से ये दुआ कर रही थी। जर्मनी में मैं 2013 में आई थी, मैं पाकिस्तान में एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ, यहाँ मेरा इंटीग्रेशन का अपना सफ़र रहा, चैलेंजेस लाइफ आप सब जानते हैं, हम सब इस सफ़र को जानते हैं। तो मैं रोज़ दुआ कर रही थी पिछले कुछ दिनों से कि या अल्लाह मेरा वो मकसद मुझे दिखा दे, जहाँ पे जो मेरे दिल में इतने अर्से से मैं सोशल वर्क भी कर रही हूँ, साथ साथ कि कोई एक बेहतर सिलसिला और निकले, और अचानक से मुझे बर्लिन से भाई की कॉल आई और इस प्रोजेक्ट को हमने स्टार्ट किया। तो मैं यकीन रखती हूँ कि आप लोगों के दिलों में भी इंडस हॉस्पिटल की जो रोशनी आज जो आ गई हम लोगों को मिली है इस प्रोजेक्ट के हवाले से, आप अपने दूसरे प्रोजेक्ट में हिस्सा डालते हुए इस प्रोजेक्ट को हमेशा याद रखेंगे। और अब्दुल बारी साहब के साथ साथ आज नुमान इजाज साहब को हमने इतने करीब से देखा। मैंने पहले जब देखा तो जरा झिझक रही थी, मैंने कहा ये तो एक ख्वाब है ना कि मेरी बेटी ने मुझे कहा कि अच्छा मामा मैं मेरे लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। इस हॉल में बहुत सारे लोग हैं इसी चीज़ को ज़हन में रख के आएंगे कि हम नुमान इजाज साहब को इतने करीब से देखेंगे, उनकी बात सुनेंगे, लेकिन मुझे उनकी अदाकारी में तो हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, मगर एक और लगन और फोकस दिया है वो है उनका एक बहुत अच्छा इंसान होना। ऐसा इंसान जो कि सफर करके इस कॉज में शामिल हो रहे हैं, अपने सेलिब्रिटी होने को मजीद कहीं किसी और हवाले से यूटिलाइज करने के बजाय वो इस कॉज में यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ गर्मी भी है, हमसे बात भी कर रहे हैं, हमें मोटिवेट भी कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये सब लोग रोल मॉडल है। आई सैल्यूट यू सर, आई सैल्यूट यू सर, एंड आई सैल्यूट यू टू आल्सो, बिकॉज आप लोग नहीं होते तो हम आज कुछ नहीं करते। आप सब लोग मिलकर सानिया बैठ करें और सेहत वाली जिंदगी के लिए दुनिया की हर चीज़ आने जाने सब ऐसे हैं। तो अपने लिए एक दुआ जो आप अपने लिए जरूर मांगे और किसी को जरूर दें, वो है सेहत वाली जिंदगी। भाई साहब क्या कहेंगे? बहुत कह आप लोग एक लाइन बना लें और आप सबकी बारी आएगी